Good evening, everyone. So today we are going to discuss a new chapter that is called as linear equation. Now, first of all, आपको एक बात बता दूं. This chapter is going to form your basis of whatever linear equation you are going to read in class 10th. अभी तक हम लोगों ने तीन चैप्टर्स पढ़े हैं. ये तीनों चैप्टर आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स का बेसिक्स हैं. पहला चैप्टर जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा या जहाँ पे हम लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर को पढ़ा, जब आप 10th क्लास में आओगे हम वहीं से अपने डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे. फिर दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का पढ़ा. जब आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे वी विल कंटिन्यू. सॉरी, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने अभी पॉलिनोमियल्स का नहीं पढ़ा है. जो हम लोगों ने यूक्लिड्स जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा in 10th standard, when you will come, जो coordinate geometry आती है, we will start from there only. There we will read different type of things. We will read section formula, we will read distance formula, we will read area of a triangle, everything we will read. But the basic that is the coordinate of a point, the definition of coordinate of a point, these things we will get to know from here only. The next chapter that you are the third chapter that you are going to study today is linear equation. Now in this chapter, which is called as the linear equation, uh, we will study many things. First of all, we will study what is a linear equation. Then we will study the variables. Then उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. And in 10th standard when you will come, then we will extend this concept to a more interesting topic that will be called as the linear equation in two variable. लेकिन that is a different thing. फिलहाल linear equation in one variable की बात करते हैं. चलो भैया, Sir, linear but in equation. NCERT textbook there is linear equation in two variables. क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, in NCERT textbook there is linear equation in two variables. See, that is not called as the linear equation in two variables, but what we have done is we express it as linear equation into. I will tell you, wait for some time. That is, you can say it as linear equation in two variable also. I will tell you how. I'll tell you how. Just wait for some time. First of all, we will be reading about linear equation in one variable. Linear equation in one variable क्या होता है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपन बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है. देखो, जब अपन 8th स्टैंडर्ड में थे, हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है सर. अभी अपन आगे भी इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. ठीक. अब जो है, इफ आई इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू जीरो, if I equate this polynomial to zero, this will become a equation. Anything equated to something, anything equated to something, that becomes a equation. पॉलिनोमियल में ही हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था. We read about linear polynomial also. We will deal with this separately. Polynomials के बारे में अपन separately पढ़ेंगे when we will deal with this polynomials. The next chapter will be polynomials only. But फिलहाल ये समझो कि an equation that is written in the form ax plus b is equal to 0. An equation that is written in the form ax plus b is equal to 0. This equation is called as a linear equation in one variable. ऐसी इक्वेशन जो कि ax plus b इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी हुई हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेयर a and b are the real numbers and a is not equal to 0. a and b are real numbers अभी हम देख कर आए हैं. a and b are real numbers and a is not equal to 0. a and b are real numbers and a is not equal to 0. ऐसी इक्वेशन को हम एक लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. यहाँ पे जो x होता है, दिस x इज ए वेरिएबल.
ये जो x होता है, दिस x इज ए वेरिएबल एंड सिंस सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन in one variable. Since I'm having only one variable, that is why this is called as a linear equation in one variable. अब इसको जरा ठीक से लिखें. For example, if I want to give you some examples, so एक इक्वेशन हो जाएगी 3x plus 5 is equal to 0. दूसरी इक्वेशन हो सकती है 7x minus 2 equal to 0. These equations are nothing but the examples of linear equation in one variable. 3x plus 5 equal to 0, 7x minus 2 equal to 0. ये सारी की सारी क्या है? These equations are example of linear equation in one variable. यहाँ पे ये जो b है, this b is called as the coefficient. This b is called as the constant. I'm sorry. This b is called as the coefficient. और ये जो a है, this is called as coefficient of x. इस a को अपन बोलते हैं coefficient of x. ठीक है. This b is called as the this b is called as this b is called as the constant और a को अपन बोलते हैं coefficient of x. अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो 5 is my constant and 3 is my कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात की जाए. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी अपन ने देखा था कि सर यहाँ पे अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे इस इक्वेशन में आई हैड ओनली वन वेरिएबल दैट वाज कॉल्ड एज x. वेरिएबल मींस इट्स वैल्यूज कैन वेरी, its values can vary, it can be anything. It can be 1 2 3 4 anything. But जो कांस्टेंट होता है, जो a और b हैं, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी. व्हाट विल हैपन इज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कैन वेरी बट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट विल नॉट वेरी. तो इस टाइप की इक्वेशन को हमने बोला था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की. अब देखो, यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से लिखी हुई है ax plus by plus c equal to 0, if I'm having an equation which is written in the form of ax plus by plus c equal to 0, this equation is called a linear equation in two variable. This equation is called as a linear equation in two variable. यहाँ पे a is called as a coefficient of x. ये जो a है, this a is called as a coefficient of x, this b is called as a coefficient of y, and c is the constant term. A is called as the coefficient of x, b is called as the coefficient of y, and c is called as the constant term. Q constant? Constant matlab it is free from x and y, its value is not going to change. दूसरी चीज ये a, b और c, ये तीनों के तीनों रियल नंबर होने चाहिए. रियल नंबर मतलब जो नंबर्स अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं, a, b और c, द थ्री कैन शुड बी अ रियल नंबर. दूसरी बात. तीसरी बात ये, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे a एंड b कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली जीरो. a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं. अगर दोनों एक साथ जीरो हो गए, जब अपन ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था तो हमने साफ साफ बोला था a इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब जब अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, हियर व्हाट आई विल से, a and b are not simultaneously equal to zero. Sir, what do you mean by not simultaneously equal to zero? What I mean here is, अगर इक्वेशन इस टाइप की है ax plus by plus c इक्वल टू जीरो, अगर ये भी, अगर a जीरो हो गया तो ये चीज जीरो हो जाएगी, अगर b जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा. b इंटू वाई विल बिकम जीरो. एक सेकंड रुक जाओ. ax plus by plus c इक्वल टू जीरो, अगर मैंने a को जीरो कर दिया तो दिस टर्म विल ax वाला पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. अगर मैंने b को जीरो कर दिया तो by वाला पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. तो मिला क्या, दिस कांस्टेंट c इज इक्वल टू जीरो. अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई, 5 इक्वल टू जीरो तो नहीं होता है. आप ऐसा कर सकते हो. अब देखो यहां से लॉजिक को
कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, लॉजिक को कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, सुनो मेरी बात। मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिखी, सर 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसा आपके पास कई जगह कई सारी चीजें मिलेंगी। आप बोलो कि भाई इसको 0 मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, यहां से मुझे 10 इक्वल टू 0 मिल रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। 10 इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। 10 तो 0 के बराबर नहीं होता ना। इसीलिए ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, या तो ए 0 हो सकता है या तो बी 0 हो सकता है, या दोनों में से कोई 0 नहीं होगा, लेकिन ए और बी दोनों एक साथ 0 के बराबर नहीं होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? से यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ए और बी Yes, दोनों sir. एक साथ 0 नहीं होंगे, या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। दोनों एक साथ के 0 होने से मुझे प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आई विल हैव थ्री टाइप ऑफ कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस हैं सर? लेट अस एनालाइज द कंडीशंस वन बाय वन। इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन, इफ a is not equal to 0 and b is equal to 0, then my equation will become ax plus c equal to 0। अगर मेरा a 0 नहीं है, अगर मेरा a 0 नहीं है और मेरा b 0 हो गया, तो मेरी जो इक्वेशन आएगी, एक मिनट रुक जाओ, अगर मेरा a 0 नहीं है और b 0 हो गया, तो मेरी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ax plus c equal to 0। now this line is a line parallel to y axis। don't worry, I will show you the graph। मैं भी आप लोगों को आगे ग्राफ दिखाऊंगा। this line is a line parallel to y axis। parallel to y axis मतलब अभी अपन पढ़ के आए हैं ना, y axis, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो दिस इज माय y axis, दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाऊंगा, तो वो मान लो यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, कहीं से भी जा सकती है, यहां से भी जा सकती है। तो अगर मेरा वाई वाला पार्ट 0 है, अगर मेरा इक्वेशन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, तो वो वाली जो लाइन होगी डेट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली सर, what will happen if my if my a is equal to 0? If my a is equal to 0, then my equation will be, then my line will be something which is parallel to x axis। अगर a equal to 0 हो गया, तो जो मेरी लाइन होगी सर वो by plus c equal to 0 होगा, and that will be parallel to x axis। ठीक है, this is something। सेकेंड थिंग इज, अगर ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो मेरी लाइन होगी सर वो कुछ इस टाइप की होगी। अगर ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, इन दैट केस माय लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। अब इसको हम लोग क्यों बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? व्हाई everything that we are reading is called as linear equation in two variable? This is called as linear equation in two variable because we have two unknowns x and y, and इनकी जो पावर होती है वो सिर्फ 1 होती है। x एंड y, x की जो पावर है वो यहाँ पे क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। y की पावर क्या है? 1 है। that is why I call it as linear equation in two variables। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इसे अपन, इसीलिए अपन इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। आगे क्या होता है सर? चूंकि इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, अब देखो, अब बात सुनना मेरे ध्यान से, यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई this chapter is called as the base of your whatever you are going to study in 10th standard। यहाँ पे देखो, there are two variables x and y। दो वेरिएबल्स हैं x और y, और एक ही इक्वेशन है यहाँ पे। तो this will have a infinitely many solutions। this will have infinite many solution। इसके infinite set of solutions होंगे। यानी कि एक इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हों, सर, मैं उस इक्वेशन
का यूनिक सॉल्यूशन नहीं बता सकता। मेरा सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन से अलग होगा, बस इतना याद रखना। मेरा सॉल्यूशन जो होगा, वॉट एवर सॉल्यूशन आई विल गिव यू, माई सॉल्यूशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर सॉल्यूशन, दैट इज द फैक्ट। कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरीके से, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, दैट इज दीज ऑल थिंग्स आर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एट अ लेटर स्टेज। सो लेट अस गेट नेक्स्ट। अभी यहां तक जो अपन ने कुछ भी पढ़ा, उसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो नो सर, नो सर। डाउट। तो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, बता मतलब रहा हूँ जो बेटा, बता रहा हूँ, लाइन के भी बारे में आते हैं। लाइन जस्ट रिप्रेजेंट्स द, जो भी आपका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसको अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो डेट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, that straight line or that parabola or whatever curve it is, it will represent the graph of that equation. ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। जैसे अपन फिजिक्स में जब लीनियर मोशन पढ़ते तो अपन ग्राफ बनाते हैं ना, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाया, उसकी एक इक्वेशन होती है, लाइक इफ आई से s is equal to u plus at, s is equal to u plus at, नहीं, v equal to u plus at, I'm sorry, Yes sir, V is equal. I'm sorry, v इक्वल टू u प्लस एटी अगर मैं एक इक्वेशन बोलता हूं, तो सर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि लीनियर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी Initial. प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक तो सर मेरा फाइनल वेलोसिटी वेरिएबल है, और एक दूसरा मेरा टाइम वेरिएबल है। जैसे जैसे मैं टाइम को इंक्रीज करता हूं, मेरी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इनिशियल वेलोसिटी, द यू कीप इज ए कांस्टेंट थिंग। हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या फिर a body traveling at 100 किलोमीटर पर आवर increases its speed by say 1 kilometer per hour square or 10 kilometer per hour square, what will be its speed after 5 hours? इस टाइप का ही क्वेश्चन होता है ना हमारे पास। तो इनिशियल Yes, स्पीड sir. हमें दी हुई होती है, इनिशियल स्पीड हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है। so we have only two variables, that is v and t. It is very necessary to understand this chapter। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज जो जरूरी है वो ये है कि हमें वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस एटी में आई एम हैविंग टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज v एंड अनदर वेरिएबल इज t, टाइम। अब इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, आई होप आपको ये सारी चीजें बताई गई होंगी। इसका जो ग्राफ प्लॉट होता Yes, है वो इस तरीके से होता है या इस तरीके से होता है। चलो निगेटिव तो नहीं हो सकता, टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, बट फॉर ए टाइम बिंग मान लो आपका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो ग्राफ होता है ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। इस ग्राफ का मतलब क्या होता है बेटा, इस ग्राफ का मतलब समझो। अगर मान लो ये v इक्वल टू यू प्लस एटी एक ग्राफ मेरा बना, अगेन इट विल नॉट गो हियर, ये जो ग्राफ है ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये जो ग्राफ है ये यहाँ नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम निगेटिव तो हो नहीं सकता, स्पीड भी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये जो ग्राफ है फॉर द टाइम बिंग कुछ इस तरीके से आ रहा है। नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम, यहाँ पे ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा यहाँ पे इस ग्राफ पे से p, दिस पॉइंट विल हैव different coordinates x comma y। Similarly एक पॉइंट यहाँ पे होगा, it will have different coordinates x comma y। तो ये एक जो ग्राफ होता है वो उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें अगर x कॉमा y की वैल्यू पुट करोगे तो योर इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ऐसे ही पॉइंट्स को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सॉल्यूशन? सर क्या होता है सॉल्यूशन, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, मजा नहीं आया। solution of a linear equation, a solution of a linear equation has in two variables has infinitely many solutions, ठीक है। A solution means an ordered pair of x comma y of values which satisfy the given equation। solution क्या होता है? ऑर्डर x और y का ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो कि हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
सेटिस्फाई करे, मतलब बात सर समझ में नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल। V is equal to 5 plus 6 into t। V इक्वल टू 5 प्लस 6 इंटू टी, ये मैंने एक नॉर्मल मैंने एक इक्वेशन बना दी। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं V और T की कुछ वैल्यूज लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ V एज 5, if I am taking the value of V as 5 and if I am taking the value of T as 0, then my left hand side will be equal to my right hand side. कैसे? अगर मैं V की वैल्यू 5 लेता हूं तो my LHS will be, यहाँ पे I am having two variables, one variable is V and another variable is T। अगर मैं V की वैल्यू 5 लेता हूं तो my LHS will become 5, और अगर मैं T की वैल्यू 0 लेता हूं तो my RHS will become 5 plus 6 into 0, which is also equal to 5. So my LHS is equal to my RHS. That is why this 5 comma this 0 comma 5 is my solution of the equation। यहाँ पे ordered pair का मतलब क्या होता है? ordered pair का मतलब ये होता है कि x comma y is not equal to y comma x। अगर आपका सॉल्यूशन 2,3 आ रहा है, दैट इज x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सर y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3 आर द सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है ऐसा होगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। हम लोगों ने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सर 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1। सो दीज आर नॉट द ऑर्डर, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब भी हम बात करते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, मतलब x की वैल्यू अपन पहले लिखते हैं, y की वैल्यू अपन बाद में लिखते हैं। इसको हमेशा अपन x कॉमा, कन्वेंशनली हम लोग x कॉमा y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x की वैल्यू अपन पहले लिखते हैं, y की वैल्यू अपन बाद में लिखते हैं। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग सर, सॉल्यूशन क्या होता है? हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन वो वैल्यू ऑफ x एंड y होती हैं। सॉल्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ x एंड y जिसको अगर मैं पुट करूंगा तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाएगा। आपके केस में जो आपको इक्वेशंस मिलेंगी, मान लो आपको इक्वेशन मिली y माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, y माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सर अगर मैं इफ आई टेक एक वैल्यू मैं आपको बताता हूं, और वैल्यूज ऑल्सो वी कैन थिंक ऑफ, नॉट ए बिग डील। एक वैल्यू बताता हूं सर, इफ आई टेक x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, इफ आई टेक x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, उस केस में क्या होगा देखो, 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5 विल बी इक्वल, इसकी वैल्यू अपन निकालनी है, LHS है ये। अब देखो 1 माइनस 6 प्लस 5, this comes out to be 0, so my LHS is equal to my RHS, therefore 3,1 is a solution of this equation। लेकिन सर 3,1 है, जरूरी नहीं है कि 1,3 भी सॉल्यूशन होगा। 1,3 का मतलब आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो, y की वैल्यू 3 ले रहे हो। If your 3,1 is the solution, it is not necessary that 1,3 will also be a solution। Take x की वैल्यू ये y की वैल्यू 3 लोगे, x की वैल्यू 1 लोगे, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 Not प्लस equal to 1 0. विच इज इक्वल टू 6 एंड दिस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई अभी हमने क्या देखा कि 3,1 तो सोल्यूशन आया था, लेकिन 1,3 सोल्यूशन नहीं आया था। द रीजन इज वेरी सिंपल। ठीक है सर, सो दिस इज द थिंग। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, तो सॉल्यूशन अपन ने पढ़ लिया कि सॉल्यूशन ये होता है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने पढ़ना है उस केस में, अब सर एक सवाल आता है कि सर आपने जो x इक्वल टू 3 ले लिया, y इक्वल टू 1 ले लिया, ये चीजें आपको कैसे पता चली? सही बात है, ये चीज आपको कैसे पता चली? तो भाई मैं तो सर हूं, सर को तो मालूम होता है, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए। आपको कैसे मालूम होगा सर? हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका होता है। मैंने ये तरीका पढ़ा था जब मैं छोटा था, जब मैं 9th में था।
आपको आज मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूं, कल दिन आपके बच्चों को भी कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, मैं तो तब तक बूढ़ा हो जाऊंगा, कोई और पढ़ाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। y माइनस टू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, ये एक इक्वेशन ले ली मैंने, ठीक सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा। व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर। कैसे एक्सप्रेस करेंगे सर, सुनो। जब 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज्यादा तो नहीं पढ़ा था, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, ट्रांसपोजिशन। ये जो -5 है सर, ये जो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा ये तो सभी को पता होगा कि दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड साइड। इक्वालिटी के ये लाइन जो है, ये लाइन इक्वालिटी वाली हो गई, दिस इज कॉल्ड एज LHS, दिस इज कॉल्ड एज RHS। यहां तक तो सभी लोगों को सभी चीजें पता होंगी, कोई बताने वाली Yes, खास sir. बात तो है नहीं। अब देखो सर, Yes, ये जो sir. -5 है जो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में है, इफ आई वांट टू टेक इट टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वालिटी, और कोई चेंज नहीं आएगा, इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब देख लो भाई, y माइनस टू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिला y माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 5। ये जो -5 था ये राइट हैंड साइड गया तो +5 हो गया। दूसरी चीज क्या होगी सर, ये जो -2x है, ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये +2x बन जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 5 + 2x। Now y will be equal to 5 plus 2x. Now for different values of x, I will have different values of y. That is why I said that this equation will have infinitely many solutions. अब आपको solution set अगर बनाने हो, जैसे आपके पास सवाल क्या पूछा जाएगा, although I will be discussing with you at later stage also, आपके पास सवाल ये पूछा जाएगा, find 5 solutions of this question. आपको एक इक्वेशन दे देंगे y माइनस टू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दे दिया, y माइनस टू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर बोला फाइंड 5 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे लिख दिया y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, तो यू विल हैव y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 into 0 which is equal to 5। then put x equal to 1, you will have y is equal to 5 plus 2 into 1 which is equal to 7। आप x equal to माइनस इंफिनिटी से x equal to प्लस इंफिनिटी आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। क्यों भाई मैं 1 सर, क्यों सर मैं 0 1 2 क्यों डालूं, मैं तो y x इक्वल टू √3 पुट करूंगा, कर दे भाई कोई दिक्कत नहीं है। पुट x इक्वल टू √3, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूं, है ना। पुट x हाँ, पुट x इक्वल टू √3, y will be equal to 5 plus 2 √3। Definitely it will satisfy your equation. You can satisfy, you can put any value। सर्च के ऑपरेशन में गलती मत करना, you will have your answer। क्यों सर, मैं तो x इक्वल टू पाई पुट करूंगा, कर दो ना, कोई nobody has stopped you। put x equal to pi, you will get y equal to 5 plus 2 pi। I don't have any problem, you can put any real number there। so this set of values is called as the solution set of the equation। अब इस चीज को ग्राफिकली अगर मैं समझाना चाहूं, अगर मैं इस चीज को ग्राफिकली समझाना चाहूं मेरे दोस्त, तो ये हो गया मान लो इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। दिस इक्वेशन विल गो इन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज नॉट द ग्राफ अप टू स्केल, तो अभी देखते हैं कहाँ कहाँ जाएगा ये ग्राफ, वो तो अपन बाद में बनाएंगे। नाउ दिस इक्वेशन विल गो इन, दिस इज द ग्राफ। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज सम वैल्यू ऑफ वाई, देखो ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज सम वैल्यू ऑफ वाई। अब आप बोलोगे सर अब क्या होगा, हियर ऑल्सो फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज सम वैल्यू ऑफ वाई।
for some value of x there is some value of y. That is why I said that these equations have infinitely many solutions. When I'm saying that for every value of x there is some value of y, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट h कॉमा k है. सर जब आप x की जगह h रखोगे, y की जगह k रखोगे सर, तो जो आपकी इक्वेशन है दैट इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड. जब आप x की जगह h रखेंगे, y की जगह k रखेंगे सर, तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी. दिस इज व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. बात समझ में आ गई सभी लोगों को? से यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. भाई किसी को नहीं Yes. समझ में आया हो तो बता दो. No, sir. Understood. No sir, understood sir. Very good sir. So in the remaining time, that is some 5 minutes 6 minutes that we have, let us quickly discuss some of the questions. जल्दी से डिस्कस करते हैं. The question is saying prove that x equal to 3 comma y equal to 2 is a solution of this equation. ठीक है सर. x equal to 3 and y equal to 2 is a solution. क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे सर? जो So मेरा we'll इक्वेशन place the है, values of x and y. pardon, I'm not getting you. So we'll put the values of x and y. Good. What we can do is, see, we have two methods. या तो देखो 3x minus 2y minus 5 को 0 के बराबर पुट कर दो. You can rewrite this equation like this. Now what you do, put x equal to 3 and y equal to 2. Now this is very necessary to write. अगर x equal to 3 और y equal to 2 पुट करने पे LHS equal to RHS equal to 0 आ गया, बल्ले बल्ले. Now let us calculate LHS. LHS will be equal to 3 into 3 minus 2 into 2 minus 5, which is equal to 5 minus 5, which is equal to 0. Now my dear friends, LHS is coming out to be equal to, इसके बाद यहाँ पे लिखो, which is equal to RHS. Now since LHS is equal to RHS, therefore I can say that x equal to 3 and y equal to 2 is a solution of this equation. Therefore I can say that x equal to 3 and y equal to 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3,2 लिखना, 2,3 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि by default we read the first point as x coordinate and second point as y coordinate. तो 3,2 लिखना है, 2,3 मत लिखना. बार बार बता रहा हूं इस बात को. तो what I can say that 3,2 is a solution of this equation. उसके नीचे ये बात लिख देना, चूंकि proved that लिखा हुआ है तो hence proved लिखना बहुत जरूरी है. और ये तो स्माइली मैं बनाता हूं, आप लोग चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो मत बनाना. लेकिन प्रूव डैट के नीचे प्रूव डैट वाले क्वेश्चन में हेंस प्रूव लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है सर, बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना. Yes, sir. चलो Yes, अगला sir. क्वेश्चन देखते हैं. Sir, but Next this question. is necessary to use this method only. What other method you want to use? Sir, by just simply putting the values only. directly. Yes, you can do it also like this. I forgot to tell, you can do it also like this. LHS will be equal to 3 into 3 minus 2 into 2, which is equal to 5, which is equal to RHS. So since LHS is equal to RHS, therefore this is a solution of this. Basically we are doing the same thing, right? We are doing the same thing. यहाँ पे अपन 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आके 0 इक्वल टू 0 पुट कर प्रूव कर दिया. यहाँ पे आपने 5 इक्वल टू 5 प्रूव कर दिया. वी आर डूइंग द सेम थिंग. बोथ द मेथड्स आर इक्वली करेक्ट, नॉट ए बिग डील. ओके, Okay, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ दिस. 3 सॉल्यूशन निकालना है बेटा. देखो कैसे निकालेंगे. चलो एक काम करते हैं, अभी अपन ने सीखा था या तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो. मैं सोच रहा हूँ, आंसर मिल गया. एक मिनट बेटा, एक Yes, मिनट. sir. Yes, मैं sir. सो- मुझे भी. मैं सोच रहा हूँ
x को जो है y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। पिछले टर्म में y को किया था, इसको x को कर देते हैं। सो यहां से मिलेगा 5x विल बी इक्वल टू, ये -6x है राइट हैंड साइड में जाएगा तो 6x बन जाएगा, ये +6 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो -6 बन जाएगा। 5x क्या, 6y है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सर 6 5x will be Yes, equal sir. to 6y minus x, तो x will be equal to 6y minus 6 divided by 5. Now if I put y equal to 0, y equal to 0 लेने पे मुझे x मिला -6/5, तो पहला सेट आ गया -6/5, 0। अब मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू y इक्वल टू 1 लूंगा। y इक्वल टू 1 लेने पे x की वैल्यू 0 मिली, तो मेरे को जो दूसरा पॉइंट मिलेगा सर वो 0,1 मिलेगा। सिमिलरली y इक्वल टू 2 ले लो, अगर मैंने y इक्वल टू 2 लिया तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी 6/5, तो तीसरा जो पॉइंट हो गया वो 6/5, 0 हो गया। तो 3 सॉल्यूशन मिल गए मेरे को। आप चाहो, आप मैंने -1, 1 और 0 लिया है, आप चाहो तो कुछ और ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैंने -1, 0 और 1 लिया, आप चाहो तो कुछ और ले लेना, बट एक बात याद रखना, पहले आप x की वैल्यू लिखोगे फिर आप y की वैल्यू लिखोगे, उल्टा किया तो नंबर कट जाएंगे, याद रखना। फिर मत आना मेरे पास सर नंबर कट गया, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप हियर टुडे। आप इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। दीज आर द सॉल्व्ड एग्जांपल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। सॉल्व द क्वेश्चन, इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करना। वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। So we will discuss further in the